Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce emerging companies from emerging sectors and make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies. And in this process, a lot of valuable information is exchanged to us. We get first-hand information from the promoters and the top management, and which helps all our investors to take a very conscious investment call when they invest in such companies. And friends, today we are going to talk about another interesting company which operates in a very interesting space and which is going to go public very soon. The company's name is GenX AI Analytics Limited, and we have the privilege and pleasure of having the managing director, Mr. Rakesh Agarwal, with us. थैंक राकेश यू जी, थैंक बहुत यू बहुत अविनाश जी। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। राकेश जी, पहला सवाल, सर अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत समझाइए कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे बड़ी बात, हमारी पोजीशनिंग क्या है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। और सर, ये बिजनेस जर्नी की शुरुआत कैसे हो गई? थोड़ा सा आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए। ये बिजनेस आपके फादर ने शुरू किया था या ये फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है जो आप ही ने शुरू किया था? सर, उसके बारे में कुछ बताइए। So thank you so much, अविनाश जी। हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा आप कह रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ही है, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस इन समवेयर अराउंड 2014, almost 10 to 15 years, so overall 25 plus years in this industry. And started with the focus that there are lot of ERP solutions in the market. There are lot of companies who implemented ERP solution to take care of their transactions, having one single source for their finance, sales, supply chain, procurement, production, everything in one single application. On top of that, there were a lot of requirement when I started this business, and before that I was part of other companies. So there was a requirement of decision making analysis. So what decision making analysis, it's not only dependent on what you have in actual. So आपको ये भी देखना है कि आपका future forecast कैसा है. How will you achieve that future forecast? For that, there are lot of applications now in the market. There they started their journey in India somewhere around 2008, when I also started my journey on the EPM side of it. We call it enterprise performance management, which covers majorly on the financial planning, disclosure management, your Ind AS reporting, your IFRS, regulatory reporting. So all those things comes around the EPM layer of the solutions. So there are three layers in IT industry, which you can say. One is your ERP, then your analytics, and on top of that you do lot of forecasting, lot of budgeting, and definitely lot of planning to be done for your future perspective. So lot of large companies globally, they have their strategy department. So we have the solutions offering around the strategy function, so that we can map their strategy to the execution. इसके लिए जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग है, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. And then on top of that, 2 years back, we also started our AI journey for the same thing, because there are a lot of people in the market to do lot of AI around the transaction layer. We do on the decision layer. So जहाँ पे एक टॉप कंपनी के जितने भी CXOs हैं, उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि यार whatever decision we are taking, whether this is we are able to get the real time actual data with audit perspective, no what you can say massaging with the data, so that I can take decision on behalf of the company, which decision will impact the company as well as the consumer which I'm serving. So all those things keep in mind, we have created the EPM layer. On top of that, we have created a software called Advico AI, which is advisory collaboration. So that's what the business into decision making support system solution provider, you can say. That's the kind of services we offer, sir. ठीक है। राकेश जी, अभी बताइए, ये जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो आपने बोला डिसीजन मेकिंग, यू आर हेल्पिंग द कॉर्पोरेट, तो सर ये सारा जो डेवलपमेंट है, जो भी आपने एआई और एआई एनालिटिक्स का काम किया है, इट इज ऑल डन इन हाउस और विद कोलैबोरेशन विद सम अदर कंपनी? पहले वो बताइए। All in house, sir. सब इन हाउस? Yeah, we have a team. So headquarter is in Jaipur. We have a AI team segregated in Mumbai and Bangalore, two regions, and those team members have built this solution. Definitely, when we say the solution, the complete engine is built by us. The backend large language model can be anything in the world. They can pick and choose, and then we will deploy the complete engine on top of that, and the UI layer, which can help them to take raise any query, and they can get the answer based on the generative AI based questions. Yeah.
अच्छा राकेश जी, मेरे को एक बात बताइए, यू सेड दैट यू डेवलप द इंजन एंड देन व्हाटएवर मोड दे वांट टू यूज दे कैन यूज, बट सर इज द इंजन गिवन टू द क्लाइंट ऑन अ सैस मॉडल या अपफ्रंट सेल होती है? सर किस प्रकार से आप बिलिंग करते हो वो बताइए। तो इट्स अ SaaS मॉडल, बट अभी आप देखेंगे तो सर SaaS के साथ साथ अभी AI एज अ सर्विस मॉडल भी चल रहा है. सो व्हाट वी आर डूइंग AI एज अ सर्विस मॉडल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SaaS मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड AI एज अ सर्विस में? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जाता है आपका नेम्ड यूजर लाइसेंसेस, कि आपने अगर 5 लोगों के लिए यूज करने के लिए दिया है कि हाँ 5,000 लोगों के लिए दिया है. AI एज अ बरोबर। सर्विस में जो हम दे रहे हैं इंजन, तो हम एक इंजन यूज केस के हिसाब से दे रहे हैं कि आपका फाइनेंस फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन में चाहे 5 लोग हैं चाहे 50 लोग हैं, आई हाँ विल नॉट चार्ज बेस्ड ऑन द यूजर्स. तो इसलिए एआई एज अ सर्विस में वी आर चार्जिंग फॉर द एआई सर्विसेज और फॉर द एआई इंजन और एआई ओके एजेंट, नॉट फॉर ओके। द नेम्ड यूजर्स. सो दैट्स द नहीं डिफरेंस वी आर नहीं, डूइंग. समझ गया, बट मेरे को बताइए नॉर्मली जब कोई कंपनी आपसे काम करती है तो सर बिलिंग नॉर्मली कितना है? इज इट टाइमलाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर 2 ईयर? सर नॉर्मली हमको जब क्लाइंट आता है तो उसको कंटिन्यू सर्विस चाहिए होती है, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नॉर्मली कितना लंबा होता है हमारे बिजनेस सो मिनिमम जो हम एमएसए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन करते हैं वो 3 साल का होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो ईयरली रिन्यूएबल होता है. सो एवरी में? ईयर आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर रिन्यू होता है. सिंस हमारा बिजनेस, आज आप देखेंगे अगर हमारा इसका बिजनेस का मॉडल देखेंगे, लॉट ऑफ कस्टमर्स आर विद अस फॉर लास्ट 10+ ईयर्स. क्यों है? क्योंकि वी आर देयर ग्रोथ टेक्नोलॉजी पार्टनर. उनका करेक्ट। अगर मैं जब एंटर हुआ तो मैं उनका क्या बताने जा रहा हूं? मैं बताने जा रहा हूं टुडे यू आर एट एक्स नंबर, you want to grow to 30% in next year, where the 30% delta will come, that we ओके contribute with our technology. So अगर ओके वो 30% बढ़ रहे हैं तो मेरा भी बिजनेस ईयरली उनके साथ में स्टिक है और ग्रो भी हो रहा है. दैट्स अवर बिजनेस मॉडल. सो हमारा ये 1 ईयर का ईयरली रिन्यूअल पे चलता है और 3 इयर्स का मिनिमम एक एमएसए हम साइन करते हैं विद ऑल द कस्टमर्स. ओके। अच्छा राकेश जी, मेरे को बताइए अभी हमारा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सारे डोमेस्टिक कस्टमर है या एक्सपोर्ट भी हम कुछ करते हैं, ओवरसीज कस्टमर? सर 60-40 है. 40% कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, 60% डोमेस्टिक. अच्छा ओके। और सर ज्यादातर अगर मैं पूछूं कि सर एक्सपोर्ट में कौन से मार्केट्स होंगे, अगर आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा हमको एक कलर दे दे तो। सो एक्सपोर्ट में सर सबसे बड़ा मार्केट यूएस है, एंड नॉर्थ अमेरिका के बाद जो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है दैट इज मिडिल ईस्ट, एंड देन साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, दोज आर द कंट्रीज विच वी आर टारगेटिंग इन द साउथ ईस्ट एशिया. सो ओके ये समझ। आपका ओवरऑल देखेंगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम यूएस ओके ओनली. ठीक। अच्छा राकेश जी, मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि आपके पास ऐसे भी कस्टमर्स है जो आपके साथ 10-10 साल जुड़े हैं, बहुत अच्छा है सर, बट प्रोस्पेक्टस से तो हम देख रहे थे कि सर आपका जो मोटा मोटी जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, करीबन 10 कस्टमर है जो करीबन 60-62% आपको कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सर दिस स्टिकीनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, और आगे चल के थोड़ा डी रिस्किंग भी करोगे, आप थोड़ा कस्टमर बेस बढ़ाओगे, यू विल ट्राई टू रिड्यूस एक्सपोजर ऑन दोज कस्टमर्स एंड यू विल मेक द ऑपरेशंस मोर ब्रॉड बेस्ड, ऐसा कुछ विचार है? बिल्कुल सर, अगर आप देखेंगे द मार्केट इज वेरी वेरी मेच्योर्ड नाउ. इंडिया मार्केट टुक रियली बिग टाइम टू मेच्योर इन द ईपीएम स्पेस. तो वहां पे भी आप देखेंगे इंडिया में टॉप 100 कंपनीज में आप देखेंगे एंटरप्राइज के अंदर. सो हार्डली 60-70 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दोज काइंड ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज. And around those global technologies, if you see, the market is, again, there are a lot of softwares coming in, but it is not like other software which you can change every year. So once you are signed with those product, you minimum sign with 3 years to 6 years down the line. And from that aspect, when the product is stick, we will stick that way. Now the ओके customer decides to go on other product. Now then again, for us, the might be that we will not lose the logo, but we will maybe minimize our or reduce the revenue size. Why? Because ओके the other product platform we might not be that much expert, but on top of that we have put our AI engine. So for the AI engine we will always get the revenue. So for your question, that 60 to 60% contribution from 10 top 10 customer, that might definitely reduce, because then we will add more customers where we will penetrate more from an AI product rather than only the EPM services. Right now, ओके if you say 70-30, 70% coming from the EPM service, 30% from the product side of it. If we ओके just see, future will be like 50-50 or 60-40 kind of a model, so that we will reduce the dependency on our existing set of large customer. It might not be reduced in that way, but it will concentrate from the हाँ overall if we add more customers from that bucket. Yeah. ठीक है।
अच्छा राकेश जी, मेरे को बताइए थोड़ा बहुत, हमको ये इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दे दीजिए. टेल अस समथिंग दैट in your assessment, since you have started the business, you know it better than all of us. सर, what is the opportunity for our company to grow? अगले 3-5 साल में सर मार्केट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि उससे अंदाजा होगा कि what is the kind of growth Gen X AI can grow. वो उसके बारे में थोड़ा सा अगर if you can give us an idea. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. इसमें एक मैं चीज बताना चाहूंगा, बिकॉज पीपल गेट कंफ्यूज्ड. जो रिपोर्ट्स आती हैं, लार्ज टेक्नोलॉजी, लार्ज जो रिसर्च फर्म्स होती हैं, वो एक देती है ये $5 ट्रिलियन का मार्केट है, ये $10 ट्रिलियन का मार्केट है, ये 5 बिलियन है. वो सब मार्केट वो कंसोलिडेट करके हर आईटी प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर देते हैं. अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं सिर्फ ईपीएम, क्योंकि हर किसी को अपना डिसीजन लेना है. लॉट ऑफ माई कस्टमर्स what they have achieved in 30 years now उसका 3x वो जाना चाहते हैं एक ही साल में. So you can imagine कि मेरा ग्रोथ कैसे मैं 3x ले जा सकता हूं जो मैंने 30 साल में लिया है. So वहां पे अगर आप ये देखेंगे, so इसमें सबसे बड़ा जो एक मार्केट अवेलेबल है वो एक इंडिया है. इंडिया में हम अब तक केवल एंटरप्राइज मार्केट को कर रहे थे. रीजन बीइंग बिकॉज जो प्रोडक्ट्स हैं, यूएस टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर वेरी कॉस्टली. सो हर कोई वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट टेक्नोलॉजी पे नहीं डालना चाहता है. Now what we are driving through our AI product on the Advico, which we are targeting around all the different SME and MSME also in India. So आप वहां पे अगर मैं मार्केट पेनिट्रेट करूं तो I have only EPM मार्केट का मेरे पास नंबर अराउंड $7 to $8 billion इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 years. तो वो अगर मार्केट में मैं सिर्फ अगर $5 से $10 million आज कर रहा हूं और उसको अगर मुझे ग्रो करना है, तो 5 years में वी शुड बी एबल टू at least $40 to $50 million top line in next 5 years, what I can envisage at this moment. ओके, ठीक है. अच्छा है सर, अच्छी क्लैरिटी आपने दी. सर एक सवाल जो रह गया मेरे से, सर आपने बोला था आपके पास 10 साल से काफी पुराने कस्टमर है और जो अभी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका जवाब आपने हमको दिया. सर हमको बताइए, हम किस प्रकार के कस्टमर्स को केटर करते हैं? आर दीज मिड साइज कॉर्पोरेट्स और प्योरली एमएसएमईज? सर थोड़ा सा प्रोफाइल बताइए, इवन इफ यू डोंट वांट टू शेयर द नेम्स. सर व्हाट काइंड ऑफ साइज ऑफ द कॉर्पोरेट डू यू नॉर्मली टारगेट? सो नॉर्मली जो ये टाइप की टेक्नोलॉजीज के लिए जो मेच्योरिटी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, वो लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं जो $1 billion प्लस होते हैं, अराउंड 10,000 करोड़ प्लस. वो साइज एक हम टारगेट करते हैं. लेकिन अभी इसमें ये हो गया कि कुछ कंपनी जो कि मैं आपको कह रहा हूँ $500 million है, $100 million है, उनको भी कई बार ग्रो होने के लिए इस तरह का टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए. तो दोज कस्टमर्स आर ऑल्सो देयर. तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो 70-30 में मैं तोड़ूंगा इसको कि 70% एंटरप्राइज कस्टमर है, 30% मिड मार्केट है. लोअर नहीं है, बट मिड मार्केट व्हेन आई से इट्स ऑल $100 million to $500 million की टॉप लाइन वाले कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूँ. समझ गया, तो अच्छी बात है. सर अभी मेरे को बताइए कि हमारे इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है? क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन तो हर प्रकार से हर सेक्टर में होता है, बट सर इन आवर इंडस्ट्री इज इट लाइक यू हैव डेवलप सम निश और आपने एक तरीके का एक यूएसपी किया है? सर मेरे को बताइए, कंपटीशन पहले किस प्रकार का है? इज इट लाइक एवरीबडी गेट्स इनफ बिजनेस और इज इट डिफिकल्ट फॉर अ न्यू प्लेयर टू एंटर एंड गेट बिजनेस? सी द बिजनेस डायनेमिक्स अगर आप पूछेंगे, स्पेशली इन द ईपीएम स्पेस जो हम कर रहे हैं, वहां पे मेजर कंपटीशन विद अस इज ऑलवेज बिग फोर एंड जीएसआईज. व्हेन आई से जीएसआईज, यू नो ऑल द बिग नेम्स इन द इंडिया एंड ग्लोबली. बट अगर मैं बोलूं आरएसआई पार्टनर्स लाइक अस जो रीजनल इस लेवल पे पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो वेरी फ्यू पार्टनर्स अंडरस्टैंड दिस. रीजन बीइंग बिकॉज इट इज वेरी निश मार्केट. बहुत बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं आता. इफ यू सी माय ग्रोथ फ्रॉम लास्ट 10 years perspective, I always work with the CFOs and CXOs in the company for a particular use case and particular problem statement to take care. Margins are very good, but the problem is volume is not that big. That's why not everyone try to enter into this. But with the kind of AI penetration, now everybody is looking into that. The transaction layer ka problem solve kar diya, analytics ka solve kar diya with the large thing. Now we will also want to see the forecasting and predictive analytics thing, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है आज की डेट में. तो वहां पे कंपटीशन विल इंक्रीज, बट द कंपटीशन स्पेसिफिकली कमिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर will always have certain age for our kind of companies who have built this business for last 10 plus years. And अगर EPM की maturity की बात करूं तो I am into this industry for 20 plus years doing only EPM. तो वहां पे एक हमारे लिए थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है to take care to cater the competition. Otherwise, if you see value wise, you will have all the big fours and this, but volume wise and number of deployment from those technologies footprint, we are the leader in India at this moment. Okay.
तो राकेश जी, मैं ये समझ लूं कि अगर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात करें जो जेनेक्स एआई के पास है, तो बेसिकली इट इज आवर कैपेबिलिटी टू केटर टू दीज कॉर्पोरेट्स एंड नॉट फोकस ऑन वॉल्यूम बट बेसिकली ऑन द वैल्यू प्रोपोजिशन। और मेरे एग्जैक्टली। ख्याल से कहीं ना कहीं रिपीट बिजनेस है तो स्टिकीनेस है, तो दैट ऑल्सो इज अ बिग पॉजिटिव फॉर यू। तो ये हंड्रेड कैन यू परसेंट कंसिडर दिस, राइट? यस, 100% सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो नंबर है पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सर 25 में रेवेन्यू तो काफी अच्छा बढ़ा है, 28 करोड़, पिछले साल 24 करोड़ था। और अभी FY 26 में आपको फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स तो है। सर हमको बताइए दिसंबर तक कितना रेवेन्यू हो गया है, सेल्स का कितना हो गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने कितना कमाया, सो दैट ऑल आवर व्यूअर्स कैन गेट अ बेटर फील ऑफ द कंपनी। सो दिसंबर 25 ऑडिटेड नंबर्स हमारा अराउंड 63-64 करोड़ है, और जो ओके। पैट है हमारा वो अराउंड 10.5 टू 11 करोड़ है। सो अगर मैं उसी प्रोजेक्शंस को देखूं तो वी हैव ग्रोन रियली गुड फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। और ग्रोथ के दो रीजन है। ऑर्गेनिक ग्रोथ बिकॉज वी हैव पेनिट्रेटेड यूएस मार्केट रियली बिग, और उसकी वजह से मार्जिन्स आल्सो हैव इम्प्रूव्ड, टॉप लाइन आल्सो हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम द स्टैंड अलोन परस्पेक्टिव। कंसोलिडेटेड आप देखेंगे तो वी एक्वायर्ड 4 कंपनीज लास्ट ईयर, and because of that the contribution even overall 100% growth में 50% have come naturally from our standalone, 50% has come from inorganic from those companies top line। तो ठीक है, समझ गया। तो उसलिए ग्रोथ काफी अच्छा है। मैं देख रहा था सर कि पिछले साल भी ग्रोथ अच्छा था, 25 के लिए करीबन आपका 6.6 करोड़ पैट था। और दिस हैज इंक्रीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 2.85 करोड़। और फर्स्ट क्वार्टर में तो काफी कम था, लेकिन जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि दिसंबर तक ऑलमोस्ट 10-11 करोड़ हो गया, तो इट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। सर व्हाट इज योर फीलिंग कि आने वाला साल, दैट इज FY 27, ऑफ कोर्स विदाउट आस्किंग यू अ नंबर, सर कैन वी एक्सपेक्ट दैट दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू? क्योंकि इस साल तो एक्विजिशंस का भी इफेक्ट आ गया है, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, तो किस हिसाब से सर ये धंधा आपको लगता है बढ़ेगा? क्योंकि एक रिलेटेड क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सर ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस होता है या रोलिंग बेसिस पे आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं? सर किस प्रकार से आपका विजिबिलिटी आपको पता चलती है? सो इसमें दोनों हैं अविनाश जी। इसमें ऑर्डर बुक भी हमारा फ्रीज्ड है। सपोज मैंने एक एक्स नंबर किया लास्ट ईयर तक, ईयर ऑन ईयर मेरा 70% ऑफ दैट नंबर इज फ्रीज्ड बिकॉज वो मेरा बेस लाइन है। ठीक है, एंड देन 30% नेट न्यू आइदर इन द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर और वी एक्वायर न्यू कस्टमर्स। सो उसकी वजह से ऐड होता है। इफ यू सी माई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड स्पेशली बिफोर 25, if you see it's almost you can say 50% CAGR we maintained. This year it's 100%. Reason I told you 50% has come from the organic, 50% inorganic. Next year also we are trying to go at least 30 to 40% CAGR. That's what the growth we are anticipating for next 3 years. So if you see from that aspect, the market is really really very good, outlook is really good. It's only the time when we can invest in our product portfolio what we are raising through the IPO mode. That's the one thing। ठीक है सर, अभी आईपीओ की बात हुई है तो सर आईपीओ के बारे में थोड़ा बताइए कि कितना पैसा हम मार्केट से उठाने वाले हैं एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज फंड्स? सो अभी हम 55 करोड़ का साइज का हम एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, एंड उसमें मेजर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें 50% ऑफ दैट विल गो इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो हमने प्रोडक्ट अभी बिल्ड किया है वो मोर ऑफ जनरेटिव एआई है। उसके ऊपर हम एक एजेंटिक एआई का भी एक लेयर ऐड कर रहे हैं विच इज मोर ऑफ अ एक्शनेबल एआई। जब मैं उसकी बात कर रहा हूं तो वहां पे वी नीड सॉलिड टैलेंट पूल टू एक्वायर, and then definitely some timeline from the customer acquisition and some spend on the customer acquisition, sales, marketing and all those things. So 2 years it will be 50% of the fundraise is going into that. Rest all is IPO expense, some of the working capital, and then some of the debt which we took in last 2 years, that we will repay from that aspect, which is hardly you can say 10% or 8% of the overall fundraise। सर एक बात बताइए, ये जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसा रेस करेंगे सर, फॉर हाउ मेनी इयर्स यू थिंक वंस वी मेक दिस कैपेक्स, ये जो हम खर्चा करेंगे सर, आपको कितना 1-2 साल फिर कैपेक्स लगेगा या बेसिकली इट इज एन ऑनगोइंग R&D एक्सपेंस? सर पीपल वुड लाइक टू नो कैसे होगा? एग्जैक्टली। सो जब हम कोई भी प्रोडक्ट का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल 3 years इट टुक लॉट ऑफ कैपेक्स एंड ओपेक्स एवरीथिंग फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, एंड हम फिर उसका एक ब्रेक इवन का स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इफ यू सी माय ऑब्जेक्ट, the numbers which are there mentioned in the documents which are accessible to everyone here,
you will see that we anticipated that we invest in next 2 years after the fund raise, and then after 2 years we will actually get the 3 years of the break even for those products. But Okay. the kind of order book we have right now, and which we will definitely discuss after the IPO, actually we have actually bought that 3 years number within this year only. So that's a Okay. very good future outlook, I can say, from that. But from the capex investment perspective, it will continue to do that, but it's maybe if it is 100 today, it might not go 25 in next year on year perspective. So it 10 to Okay. 15%, 20% only will remain in the capex side of it. For us, the capex is more on the hosting side of it. So because अच्छा. we have to acquire a lot of hosting, and it will grow, so it cannot be expense that perspective, because it is a part of the revenue only. So हाँ. when I say, as soon as I acquire more customer, I need more capacity to increase on the capex side of it to deploy Okay. my product. So there Okay. is no direct investment. Otherwise, in any consulting, any services company, the major investment on the capex side goes in the laptop or some of the internet services or some of the software which we deploy for our own testing purpose for the development side. ओके, ठीक है। अच्छा सर, वर्किंग कैपिटल नॉर्मली साइकिल हमारे लिए कितना बड़ा होता है? लाइक राइट फ्रॉम द टाइम यू बिल्ड द कस्टमर, सर आपका जो रेगुलर एन्युटी वाला कस्टमर है, जैसे कि आपने इंजन बनाया है, उसका तो पैसा आपको रेगुलरली आता रहता होगा, बट नया कस्टमर जब आपसे काम करता है, तो व्हाट इज द नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो जरा बताइए। सो वर्किंग कैपिटल साइकिल सर, अगर मैं आज की डेट में करंट वे में बताऊं, तो इंडिया का हमारा, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ एमएसएमई, सो 45 डेज हमारा रहता है, मैक्सिमम 60 डेज इन वेरी एक्सट्रीम केसेस इट गोज, अदरवाइज 45 डेज में इन द स्टैंड अलोन लेवल पे आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर यूएस इट गोज ऑलवेज, बिकॉज यूएस वर्क्स इन द क्रेडिट डेज ऑफ 60 to 90 days. सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, बट मेरा अगर मैं डे वन पे किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, सो दैट गोज इनटू माइलस्टोन बेस. सो वहां पे आप देखेंगे मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी फॉर 3 months, बट बिल ही मैंने रेज किया आफ्टर 3 months, एंड देन इमीडिएटली द साइन ऑफ इज देयर, वी कैन रेज द. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मंथली साइकिल, एंड वी रेज द बिल मंथली एंड वी गेट इन 45 days of it. ओके। अच्छा, राकेश जी, एक क्वेश्चन है जो आपके प्रोस्पेक्टस में है। सर, आपके कैश फ्लो में ना एक एडजस्टमेंट है, आप अगर बताएंगे तो मुझे लगता है वी विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देयर इज अ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व एडजस्टमेंट। सर, ये आपके FY 26 के फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर आपने प्रेजेंट किया है, तो सर ये क्या, व्हाट इज इट, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी दीजिए कि क्या है। कैपिटल रिजर्व नॉर्मली तो बुक एंट्री होती है, तो ये एक्चुअली किस प्रकार का एसेट के ऊपर ये हुआ है? सर इसमें जो आप देखेंगे, तो दैट वे इट इज मोर ऑफ अ acquisition what we have done in US last year. So that acquisition was done on the fair market value. So whatever delta is there from the fair market value to what it has to be from the Indian perspective, because there are a lot of differentiator between how India do the valuation mechanism on based on PAT and EBIT, and what US does based on the top line and a number of राइट। customers. So the statistics difference. So whatever delta was there, that was the cash reserve entry is there. ओके। There is nothing beyond that, because we always want to be transparent from that aspect. But this entry is more from a delta which had to be booked somewhere in the Indian books, because parent company is Indian company which acquired the US entity from that ठीक aspect. है। नहीं, नहीं, ठीक है, समझ गया। आई थिंक अच्छी तरह से आपने समझा है। राकेश जी, अभी एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, जो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली आपको पूछेंगे और हम भी आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। सर, आपके पास बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है। आई मीन, मैं 2-3 नाम आपको बताता हूँ सर। इसमें हार्बिंगर टेक्नोलॉजीज है, फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर प्रॉक्सिमा टेक्नोलॉजी। सर, ये सारी कंपनीज करती क्या है, और आगे जब एक हमारी कंपनी पब्लिक इश्यू होगी, तब इन कंपनीज की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? विल दिस कंपनी डू समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग, एंड इन व्हाट वे आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट द लिस्टेड कंपनी के धंधे में ये कंपनीज कुछ काम नहीं करेगी? सर, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल. सो सर, ये कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले 2025 तक इन्वॉल्व थी. सो अभी वो कंपनीज का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बट ये दो कंपनी जो यूएस एंटिटी है, दीज आर सम यू कैन कंसिडर एज अ कस्टमर, बिकॉज दे हैव देयर ओन कस्टमर्स देयर, बट दे रेंडर सम सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम अस. सो वो हमसे कुछ रिसोर्सेज लेते हैं, हमसे कुछ सर्विसेज लेते हैं, और वो वहां पे देते हैं. So then there will be some entry which we will raise the invoice to them, and they will pay us for the revenue which they collected it. So those transaction will be there. This is a common business model across the globe.
that you always try to, and even customer wants to push that their onboarded customer, you just pass through your business through them, so that you gain the time of onboarding process. Otherwise, if it will take 3 months, I will lose the business, they will also not require the services. So नहीं नहीं that's समझ the गया. reason. It is something in the consulting industry, it is a common business model, but yes, that's what I can answer at this point. ठीक. अच्छा सर, अभी थोड़ा सा अपने मैनेजमेंट टीम के बारे में बोलिए सर. वी नो दैट यू आर द मेन प्रमोटर, एमडी ऑफ द कंपनी. सर आपका मेन फंक्शनल एरिया क्या है? नए कस्टमर्स को एक्वायर करना, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना. सर व्हाट इज द काइंड ऑफ functions which you handle primarily in the company? So my focus is always on the growth. My focus was on the growth. I'm the growth partner for all my customers. So I would remain the growth partner for my own setup as well, my own company. Now I have multiple other leaders in the company. I have the group's chief executive officer, joined last year, almost 6 months back. I have chief operating officer. I have chief financial officer. I have my HR head, my accounts head. I have one non-executive director and who heads our US portfolio in US itself, who is the US citizen. It's there. So I have one chief innovation officer, again joined from a very good pedigree for last 20 plus years experience, and 6 months back he joined. I have a very good chief technology officer, chief product officer. So in the top line team, you will see around 15 to 18 top people who have come with 20 plus years of experience in the industry, where we can take together, we can take this company to the next level. अच्छा सर, राकेश जी, लास्ट सवाल. नॉर्मली हमारे धंधे में, इन आवर बिजनेस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क? क्योंकि सर एआई कंटिन्यूसली अभी बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज ओवरनाइट. सर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इन आवर बिजनेस? और सुबह सुबह जब आप ऑफिस आते हो तो सर पहली चीज आप क्या मॉनिटर करते हो? सर सबसे इम्पोर्टेंट जो और पॉइंट है, नॉट ओनली फॉर मी, for any industry in my this thing, any person, any company in my industry, consulting industry or AI industry, you say, is the talent. So talent retention is the biggest risk, and people are, it's very difficult to retain people. You can't retain people only with the remuneration. So I believe in three things: the respect, remuneration, and exposure. If I can provide those three things to my people, I would be able to retain them. That's what I can minimize the risk of losing the talent. Because we are into people business, we are into services business. Services business can grow when you can show that value within your company. If I can say that top leadership team is there with me for last 10 plus years, 5 plus years, that shows the strength that we are there, we are aligned, our thought processes are aligned, we all can work in a very good synergy with the customer to solve their problem. So that's what the biggest risk and biggest risk mitigation I can envisage here. नहीं सर, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को. आई थिंक सर प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट, आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time, and thank you so much for this interview. Have a great day, sir.